فلسطین، وہ ارض مقدس جسے انبیاء کرام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، فلسطین جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے سردار انبیاء محمد مصطفیٰ روح القدس کے ہمراہ سفر معراج کے لیے پابہ رکاب ہوئے، جس دھرتی پر سید الثقلین نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا، جہاں اسلام کی عظمت رفتہ اور جنت گمگشتہ کا نشان قبلہ اول کی صورت میں آج بھی موجود ہے، جہاں تاریکیوں کے وارث گزشتہ 6 عشروں سے 60 سالوں سے تیر و تلوار کے زور پر خون ناحق کو چھپانے کی ناکام کوشش کر کے اپنے ہی ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا رہے ہیں۔ پھٹکی ہوئی مادیت اور خود فریب مفاد پرستی نے اپنی گھٹیا سوچ کا ایسا راگ الاپا ہے کہ غیر تو غیر ہیں، اپنے بھی اس کے بھور میں غوطہ زن ہے۔ ملت اپنے جسد واحد کے تصور کو بھلا بیٹھی ہے، عالم اسلام کے اس رشتے ہوئے ناسور پر احتجاج تو کیا کوئی بات تک کرنے کو تیار نہیں۔ اقوام عالم کا ضمیر بے حسی کی چادر تان کر سو رہا ہے، لیکن جب تقدیر کے قاضی نے زنجیر ہلائی تو پھر نہ کسی ظالم کو زمین پر پناہ ملے گی نہ آسمان پر، کیونکہ ہمیں کامل یقین ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور ظلم کی قسمتیں ناکارہ و رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ایما سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے، دامن پہ ٹپک سکتا ہے، شعلہ دھند ہے، خرمن پہ لپک سکتا ہے، اور ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے، آغاز سے انجام تلک خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ مٹے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بجھیں، اور ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ دبیں۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بت سے راہی، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنی
कुशाई या इलाही या इलाही या इलाही या इलाही। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नजर में अजाने सहर में, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज उसने पाया उन्हीं के जिगर में। या इलाही या इलाही या इलाही या इलाही। कुशादे दरे दिल समझते हैं उसको, हलाकत नहीं मौत उनकी नजर में। दिले मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली के थी नाराए लातज़र में। अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दिया। इलाही या 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 इलाही। मेरा नाम मलका है, मेरे 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 नहीं चलती हैं। क्या इस तरह जिंदगी का सफर तय किया जा सकता है? 2 बेटी चल नहीं सकती है। पहली बेटी बड़ी वाली को ये बुखार हो गया था, पता नहीं क्या इसका मसला था। शुरू में सही बैठती थी, इसके बाद फिर वही हो गया। लूमों में मैं काम करता हूँ, धागे का जो कटकोन रिवेन होता है, उनमें हमारे को 300 रुपये दिहाड़ी है, 12 घंटा ड्यूटी ले। हमारे घर किराए का 2000 रुपये किराया देता हूँ। 3 बच्ची मेरी दूध पीती है, वो पूरा नहीं होता हमारे लिए। बच्चा का हमारा रोज का 150 रुपया दूध में लगता है, ना है नहीं। कभी पानी पिला देता हूँ। ना मुनासिब ग़िज़ा, ना इलाज। मैं चाहता हूँ मेरे दोनों बेटी का इलाज हो जाए। आप लोग इलाज कर दिएगा तो मैं आप लोग के लिए दुआ करूँगा। इंशाअल्लाह आप लोग खुश रहिएगा। आप मेरी दोनों बेटी के लिए इलाज के लिए मदद करेंगे? क्या आप इनके इलाज का जरिया नहीं बन सकते? मेरा नाम जावेद है। मेरा बेटा, उसे आंखों का कैंसर रेटिनोब्लास्टोमा था। इसको लेके हम पूरे कराची शहर का कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसमें हमने नहीं दिखाया। मुझे डॉक्टरों ने बड़ी प्यार मोहब्बत से समझाया कि सर देखिए ये एक बहुत बड़ा केस है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अब आपको बहुत बड़ा फैसला लेना है दिल पे हाथ रख के। तो मैंने कहा मैंने क्या फैसला लेना है? कहने आपको ये फैसला लेना है कि आपको आपके बच्चे की आँख निकलवानी पड़ेगी। कहाँ गया था मैं? तो मैंने उनके ऐसा हाथ जोड़े थे, पाँव जोड़े, मैंने सर कुछ भी कीजिए, आँख बचा दीजिए, आँख ना निकले। मैं अपने बेबी के इलाज के सिलसिले के अंदर जो कुछ भी मैं कर सका वो मैंने किया। कर्ज के अंदर डूबा 4,60,000 के लगभग, या अब कुछ तो 19-20। मैं चाहती हूँ कि कोई हमारे इस कर्ज को अदा करने में हमारी मदद करे। क्या आप हमारे इस कर्ज को अदा करने में हमारी मदद करेंगे? क्या हम इन माँ बाप के आंसुओं की कीमत अदा नहीं कर सकते? जनाब, ये हमारा सेगमेंट नेकी का, और अब तो बस ये नेकी हासिल करने के और इमदाद करने की भी बस कुछ ही मौके रह गए हैं। आज 26 रमज़ान मुबारक है,
اس کے بعد 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 4 اور سیگمنٹس اس طرح کے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام تر ان اداروں کا, ان شخصیات کا, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا, جو کہ پورے رمضان المبارک کے دوران اس طرح کے لوگوں کی مدد کرتے رہے اپنے طور پر. ہمارے جو بھی مہمان آتے ہیں ان کے لیے 3 ماہ کا راشن کا بھی سلسلہ ہوتا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے. یہ آج کے بھی آپ نے 2 مہمان دیکھے ہیں, یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. جاوید بھائی کی ابھی آپ دکھ بھری آواز, درد بھرا قصہ سن رہے تھے اپنے لخت جگر سے متعلق. جاوید بھائی یہاں بیٹھے ہمارے ساتھ, السلام علیکم. ذرا مائک قریب کر کے بات کیجیے گا. جی سر. جاوید بھائی یہ کیا, یہ اس بچے کو آپ کو کب معلوم ہوا, کیا یہ پیدائش سے ہی اس کی آنکھ میں کوئی مسئلہ تھا, یا اچانک یہ خبر قیامت بن کے ٹوٹی آپ پہ کہ یہ مسئلہ ہو گیا, آنکھ کا کینسر ہو گیا اس کو؟ سر ایسا 5 سال کا میرا بیبی تھا, یہ اچانک کھیل کھیل میں پتہ چلا کہ انہیں مائک ذرا قریب. ایک آنکھ سے نظر ہی نہیں آ رہا. اچانک پتہ چلا؟ اچانک پتہ چلا. آنکھ بالکل نارمل جس طرح ہوتی ہے عام لوگوں کی, بالکل اس میں کوئی کچھ بھی نہیں پتہ لگا. تو یعنی کہ اچانک پتہ چلا تو ہم اسے ہاسپٹل لے کے مختلف دوڑتے رہے. کتنے سال کا تھا آپ کو؟ اس وقت 5 سال 1 ماہ. 5 سال کا تقریباً. جی. اس کے بعد سر دکھایا, بہت بھاگ دوڑ کی. ڈاکٹروں نے یہ فائنل کہا کہ یہ ریٹینوبلاسٹوما ہے. کیا ہے؟ ریٹینوبلاسٹوما, آنکھ کا کینسر. آنکھ کا کینسر یعنی کہ کوئی حل نہیں ہے سوائے آنکھ نکلوانے کی. آنکھ سر نکلوانی ہے, ایک آنکھ میرے بچے کی نکالنی. کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر یہ آنکھ نہ نکلی تو خدا نہ کرے دوسری آنکھ؟ وہ پھر انہوں نے نکلوائی نا اپنے آنکھ, نکلوائی. اب یہی ہوا ہے, آپ بتائیے ذرا پورا قصہ بتائیے. سر وہ آنکھ نکلوائی کیونکہ دوسری آنکھ میں وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. آپ کی والی بات تو اس کو لیزر کتنی اذیتناک بات ہے کہ ایک آنکھ جیسی نعمت سے انسان خود اپنے آپ کو محروم جلد از جلد کر رہا ہے, نکلوا رہا ہے آنکھ, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ کینسر پھیلتے پھیلتے دوسری آنکھ کو بھی متاثر کر دے. پھر کیا کیا آپ نے؟ ایک آنکھ نکلوائی سر, ایک آنکھ نکلوانی پڑی. تو اس وقت ٹائمنگ نہیں تھی کہ میں کسی کے پاس جاتا اپیل کرتا. ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا, سب سے بڑا ہاسپٹل تھا آنکھوں کا, اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ لیٹ نہیں کر سکتے, دوسری آنکھ کا بھی وقت ختم ہے سر. تو آپ سوچ سکتے ہیں ہفتہ 10 دن کے اندر کیا میں کرتا, تو مزدور تھا سر. یہ آپ نے آنکھ کب نکلوائی اس کی؟ یہ 5 ستمبر 2013. سال بھی نہیں ہوا, اور ابھی تک کنٹینیو علاج چل ہی رہا ہے سر. اب اس کی اب یہ ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے, 70% محفوظ ہے, اور ابھی 30% کا ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا. اور دوسری آنکھ جو آپ نے نکلوائی وہ تو نکل گئی نا سر. اس میں آئی پلانٹ لگانا ہے. ابھی آئی پلانٹ ابھی کچھ پتہ نہیں کہ یہیں کا بنتے ہیں یا باہر سے منگواتے ہیں کیا ہے. اب ایک دوسرا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ابھی کچھ صاحب ثروت افراد ان کا علاج بھی کروا رہے ہیں, لیکن یہ انہوں نے جو آنکھ نکلوائی ہے اس بچے کی, اس کے لیے انہوں نے ظاہر قرض لیا ہے, آپریشن کروایا اس کے لیے قرض لیا ہے, اپنا ذاتی گھر بیچ کر قرض لیا ہے. گھر بیچا ہے؟ جی ہاں سر, گھر گیا, گھر بیچے. تو اب ان پر تقریباً 5 لاکھ روپے کا قرض ہے. ہماری ابتدائی گزارش ہے کہ کم سے کم یہ تو ایک مسئلہ حل ہو کہ وہ قرض جو انہوں نے اپنا گھر بیچ کر لیا ہے اپنے بچے کی آنکھ نکلوانے کے لیے, یہ مسئلہ پہلے حل ہو جائے. تو باقی جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ تو چل رہا ہے, اور وہ کچھ صاحب ثروت افراد اس کا خیال بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. قرض والا معاملہ اگر حل ہو جائے تو یہ بڑا معاملہ بہتر ہو جائے گا. آپ والدہ ہیں ان کی, آپ گھر پر ہی ہوتی ہیں, کہیں کام کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ نہیں, میں گھر پر ہی ہوتی ہوں اور بچوں کو دیکھتی ہوں. پچھلے 1 سال سے بچے کا صرف علاج کے لیے لے کر بس بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں. کبھی جینا جانا ہے, کبھی کسی اور جگہ جانا ہے جہاں ڈاکٹر بولتے ہیں کہ کون سے ٹیسٹ کروانے ہیں, NMI سے وہ کیا کہتے ہیں CT اسکین ہے, MRI ہے, سب چیز کروانے ہیں, وہ سب کرواتے رہتے ہیں. پورا 1 سال ہو گیا مسلسل بھاگ دوڑ میں. 1 سال سے بچے کا علاج چل ہی رہا ہے. ابھی بھی 3 مہینے بعد اس کو بولے آئی پلانٹ لا کے لگائیں گے. اب تاریخ ملے گی, 4-5 بار جائیں گے پورے مہینے, عید کے بعد دوڑیں گے بھاگیں گے, تو پھر جو ہے ایک تاریخ ملے گی میڈم کی, پھر جو ہے آنکھ جو وہ آئی پلانٹ ہے, بچے کا آئی پلانٹ ہے وہ لگے گا. محمد سلیمان. جی صحیح. تو یہ ایک آپ ان کی گزارش کی تھی, اور پھر بھائی کرتے کیا ہیں؟ سر میں پاور لوم جکاٹ آپریٹر ہوں. اچھا, جکاٹ آپریٹر. جی سر. کیا تنخواہ ہے؟ سر تنخواہ نہیں ہے, ڈیلی ویجز ہے, 300-350 روپے. اچھا,
अजीज़ान गिरामी, आप लोगों से माइंड अगर एक कॉल है पहले बोले। हाँ ज़रूर ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं जुनैद बात कर रहा हूँ। हम दो दोस्त हैं जी जी। और हम मिला के आज 2.5 लाख और कल 2.5 लाख इंशाल्लाह जो भी मेहमान होंगे उनको आप दे दें, पाकिस्तानी रुपए। अरे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बहुत नवाजी, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। आप दोनों की दोस्ती को अल्लाह सलामत रखे ताकि आप लोग मिलकर इसी तरीके से लोगों के हाँ, अल्लाह पाक मसाइल हल करते रहें। जान में, माल में, वक्त में बरकत दे। 3 तो दिन रह गए हैं। वैसे 1 रुपए पे 10 रुपए है, इस वक्त 1 रुपए पे 70 रुपए है। 3 दिन रह गए हैं। दोस्तों से गुजारिश है, खूब दिल खोल कर दीजिए। आप अपना माल इन लोगों को दें, आपका माल इधर खर्च हो। आप ये समझिए कि जैसे मिन जानिब अल्लाह ये तौफीक है आपको, कि अल्लाह पाक आपको तौफीक दे रहे हैं कि आपका माल जो है वो लोगों में खर्च हो। अल्लाह ने दिया है मेरे दोस्तों। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं तो हिल गया हूँ ये सोच के वसीम भाई, बच्चे की आंख ये बाप ने किस तरह किया होगा, खुद निकलवाई जाके, खुद निकलवाई होगी। ये किस कदर मुश्किल बात है, तो किस दिल से इस बाप ने किया होगा। एक और कॉलर ने हमें कॉल की और उन्होंने भी इनके लिए 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत नवाज़िश। वसीम भाई ये मेरी से आप पहले मेरे से बात करें। ये एक दूसरा एक निज़ाम है। हमारे भाई हैं मोहम्मद नसीम साहब, 3 बच्चे हैं। एक बच्ची 5 साल की है। बच्ची आई आपके साथ? ये माशाल्लाह ये 5 साल की बच्ची है और एक ये 3 साल की बच्ची है। बच्ची को पहले बुखार था, बाद में ये दोनों चलने फिरने से इनको दोनों का बुखार हुआ। फिर दोनों बच्चे जी, और वो अल्लाह जाने क्या बुखार हुआ कि चलने से माजूर हो गए। अभी चल नहीं सकते ये बच्चे, दोनों बच्चे नहीं, बच्चे दोनों नहीं चल सकते। और ये इनकी तकरीबन 300 रुपये दिहाड़ी है रोज़ाना, डेली बेसिस पे काम करते हैं। किराए का घर है 2000 रुपये। तो इन बच्चों के इलाज के लिए, अच्छा ये बता रहे थे अभी मुझे, मैंने इनसे पूछा कि भाई किसी डॉक्टर से मालूम करवाया? तो बता रहे थे कि मैं शर्म के मारे, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं कुछ भी। जो इंसान 2000 रुपये महीने किराए के मकान में रह रहा होगा, 2000 रुपये महीने किराए के मकान में रह रहा होगा, वो बच्चों का इलाज कहाँ से करवाएगा? तो कह रहे थे कि मुझसे तो बोला ही नहीं गया कि मैं डॉक्टर से ये पूछता कि क्या खर्चा होगा। अच्छा, इतना अमाउंट ही नहीं था कि किसी डॉक्टर के पास जाते। और हाँ, मैं शर्म के मारे पूछ नहीं सका कितने का इलाज होगा। आप लोगों के पास आ गए होंगे, मेरी मदद करिए। मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि अगर इनको इनिशियली 2 लाख रुपए मिल जाएं, अच्छा हाँ, अगर इनको 2 लाख रुपए मिल जाएं तो बच्चों का इलाज शुरू हो सकता है। ना दूध पिलाने को पैसे हैं, ना कुछ है। मुझे अभी मैसेज किया मेरे अपने भाई ने इन के लिए 50,000 रुपए का कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ, जज़ाकल्लाह, 50,000 रुपए इनके लिए। और अच्छा, हमारे साथ अभी मुझे बताया है कि इन्होंने इम्तियाज़ सुपर स्टोर के हवाले से हम काफ़ी इनामात डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। उम्रे के टिकट्स उन्होंने बहुत दिए हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका। इम्तियाज़ सुपर मार्केट के जो ओनर हैं इम्तियाज़ अब्बासी साहब, वो भी आज शान रमज़ान का हिस्सा अच्छा, मुझसे अभी मुलाकात की, बड़े उन्होंने खामोशी से प्यार से सिर्फ बताया मैं इम्तियाज़ हूँ, तो मैं पहचाना नहीं। बिल्कुल, अच्छा 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 अच्छा। तो वो भी ये चाहते हैं, बल्कि उनकी भी ख्वाहिश थी कुछ इमदाद करना, तो हमने कहा कि आप यहाँ आकर कीजिए ताकि फिर बाकी लोगों के लिए भी अच्छी एग्जाम्पल। बैठे में इम्तियाज़ भाई, बैठे। अगर भेज सकें इम्तियाज़ साहब को, इम्तियाज़ अब्बासी साहब, इम्तियाज़ सुपर मार्केट के जो ओनर हैं, तशरीफ लाइए, आइए जरा। आपने इम्तियाज़ भाई, बल्कि मैं ये मुझे आपसे थोड़ा सी नाराज़गी है कि आपने अपना 1 सेकंड के लिए दिए, आपने अपना पूरा तारुफ नहीं कराया मुझे। आप भी जल्दी में थे। अच्छा जी, तो इसलिए मैंने कहा कि फिर मतलब ये मैं कराची में थोड़े ही ख़ानदान होंगे जो आपके सुपर स्टोर से इस्तेफादा नहीं उठा रहे। बिल्कुल ऐसा ही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी 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 जी। अच्छा, आइए तशरीफ लाइए, बैठिए बैठिए। ये अभी इम्तियाज़ भाई की भी बैठिए, तशरीफ लाइए, ख्वाहिश थी, तशरीफ लाइए। आप कुछ बात करना चाहेंगे इस सिलसिले में इम्तियाज़ भाई? मैं इस सिलसिले में ये ज़रूर बात करूँगा कि आपको खुदा ने चुना है और आपने इस तरह से इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया और इनकी लोग हेल्प कर रहे हैं, जिसकी अवेयरनेस आपने दी है। बहुत बड़ी हमारे जैसे लोगों के लिए ये एजुकेशन है कि हम लोग आगे आएँ और इनकी हेल्प करें और इनके प्रॉब्लम्स में कमी हो, और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं दिली तौर पर लाखों लोगों की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ। आइंदा भी इस प्रोग्राम को जारी और सारी रखें, और इंशाल्लाह इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बात करेंगे और कुदरत वसीले बनाने वाली है।
آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا لاکھوں روپے لوگ کون کہاں سے لوگ دے کے جا رہے ہوں گے. تو کائنڈلی اس طرح کا پروگرام مسلسل رمضان کے بعد بھی جاری رکھے آپ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارے آخری ہیں 1.5-2 منٹ، تو جو کچھ امداد ہے وہ ہم لوگوں سے، بلکہ پہلے آپ ذرا یہ کیا سلسلہ کر سکتے ہیں یہ بتائیے گا. یہ بھائی یہ کیش پارٹی ہے. یہ میں اپنی طرف سے 25,000 ان کو دینا چاہتا ہوں. جی 25,000 آپ قبول فرمائیے. 25,000 جو ہے ماشاءاللہ، ان کے لیے ماشاءاللہ، دعاؤں کی ماشاءاللہ. درخواست ہے. ماشاءاللہ بہت آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگ دلی مبارک کو. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی سر. آنے کا شکریہ، آنے کا شکریہ. اور آپ تو اس مہینے آپ بے شمار لوگوں کو عمرے پر بھی بھیج چکے ہیں انشاءاللہ. تو وہ دعائیں الگ لگ رہی ہیں آپ کو. بالکل بالکل، کیوں نہیں. اور وہ بھی آپ کے وسیلے سے ہوا ہے. یہ بھی کہ ہمیں یہ نیک کام کرنے کا اس طرف بھی موقع ملا. بڑی مہربانی، تھینک یو. بڑی مہربانی. ایک اور کالر بھی جناب میں جاتے جاتے آپ تشریف رکھیں، کالر کو ہم جاتے جاتے لے لیتے ہیں. اچھا کال کٹ گئی ہے، ٹھیک ہے. وہ 20,000 روپیز کی ایک اور کالر بھی تھے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اب یہ ماہ رمضان بالکل اپنے اختتام کو ہے، اس لیے ہم یہی گزارش کریں گے ہمارے جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جو ہاٹ لائن ہے 24/7 وہ کھلی ہوئی ہے. آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے. سیگمنٹ کا وقت بہت محدود ہوتا ہے، امداد کا مدد کرنے کا لامحدود وقت ہے. آپ اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیجیے گا پلیز. گفٹ ہیمپرز ہیں شان کی جانب سے، فلک رائس، گولڈن سن، شیزان، کوثر مسالے اور صوفی کی جانب سے ہمارے نیکی کے مہمانوں کے لیے. انشاءاللہ شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اوپر والوں پر پابندی ہے کوئی تالیاں بجانے میں؟ اچھا ٹھیک، چلیں جی. ترک تعلقات کا مجھ کو بھی غم نہیں، یہ شعر مکمل کریں. المیرا کے جوڑے کا سوال. یہ میں شعر پڑھتا ہوں کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے میں پتہ نہیں کوئی انگلینڈ میں آ گیا ہوں، میں افغانستان میں آ گیا ہوں، یا میں نے فارسی میں کوئی بات کر دی ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا ہے میں نے. ترک تعلقات کا، ان کو یہ آدھا تو آ گیا آپ کو یاد، آپ کی ایکسپریشن بتا رہے ہیں، آدھا ہی بتا دو یار کوئی بات. آدھے شعر پہ پورا جوڑا. ترک تعلقات بتائیں گے؟ اچھا ابھی اور سوچ رہے ہیں، بریک پہ چلے جائیں پھر ہم سوچ لیں گے. تو اچھا ترک تعلقات کا مجھ کو بھی غم نہیں، چلیں چھوڑیں. خیبر پختونخوا، پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے گورنر کا نام بتا دیں. چلیں خیبر پختونخوا کے گورنر کا نام بتا دیں. نہیں کیا؟ تو آپ بتاؤ گی، بتائیں بھائی. پرویز کھٹک. پرویز کھٹک. کنٹرول روم سے فرمائش آئی ہے کہ پرویز کھٹک کو خیبر پختونخوا کا گورنر بنانے پر سب ایک دفعہ کہہ دیں مل کر واہ 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 واہ، کہہ دیں بھائی. اب آرام ہے تمہیں. چلو خیبر پختونخوا کا گورنر پرویز کھٹک نہیں ہے. پرویز کھٹک کون ہے؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں. کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے؟ آپ یار جواب بتا دیں. ہاں پی ٹی آئی سے. خیبر پختونخوا کے گورنر کون ہیں؟ عباسی نام آ رہا ہے ان کے آخر. عباسی تو کاشف عباسی بھی ہیں ہمارے اینکر ہیں. آخر میں عباسی. کاشف عباسی تو نہیں ہے؟ نہیں آخر میں حنیف عباسی. کاشف عباسی بھی نہیں ہے، حنیف عباسی بھی نہیں ہے. تھوڑا سا تو آپ نے بتا دیا. ہاں بتائیں بھائی. مہتاب عباسی. سردار مہتاب عباسی. المیرا کا جوڑا دیجیے جی. ان کو کوئی گفٹ ہیمپر تو دینا کرتی کالا کا، انہوں نے بھی عباسی تو بتایا ہے. کرتی کالا کا گفٹ ہیمپر دیجیے. اور وفاقی وزیر ریلوے کا کیا نام ہے آج کل؟ ایڈن روب کا کرتا. وفاقی وزیر ریلوے کا کیا نام ہے؟ بتائیں بھائی، بتائیں. خواتین بتائیں گی. وفاقی وزیر ریلوے کا نام سعد رفیق. خواجہ سعد رفیق. دیجیے جناب. ایڈن روب کا جوڑا صحیح ہے. سی ایم ایچ کن الفاظ کا مخفف ہے؟ سی ایم ایچ. سی ایم ایچ بتائیں بھائی. ہاں چیف منسٹر ہاؤس. چیف منسٹر ہاؤس نہیں بھائی، یعنی اب اس طرح تو آپ پتہ نہیں. ہاں کرائم، مزدور، ہالینڈ کر دیں، اس کو کچھ بھی کر دیں. لیکن جو اصل سی ایم ایچ سے مراد زیادہ مستعمل سی ایم ایچ کی اس میں ہے
ये पड़ोस में देना अपने भाई। सिविल मिलिट्री हॉस्पिटल। सिविल मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं, ये बताएगा, ये सही बताएगा। कैंटोनमेंट मिलिट्री हॉस्पिटल। कैंटोनमेंट भी नहीं, ये और कौन बताएगा? सारे जवाब आप देंगे क्या? अब्बासी, अच्छा उन्हें दे भाई, उन्हें दे। हाँ भाई, कॉमन मिलिट्री हॉस्पिटल। कॉमन भी नहीं है, ये मिलिट्री हॉस्पिटल तक तो ठीक है, लेकिन ये कौन सा मिलिट्री हॉस्पिटल है? सिविल भी नहीं है, हैं? फौजी भाई, सीएमएच में फौजी कहाँ से आ गया? फौजी तो एफ है ना भाई। बताएं आखिरी। हाँ, मिलिट्री हॉस्पिटल, कैंट मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं, सीएमएच है कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। गलत हो गया भाई। चलें, सीएलआई तो सबको पता है ना क्या होता है? सीएलआई, सीएलआई से क्या मुराद होता है? मोबाइल फोन पे जो CLI नंबर आ रहा है। हाँ हाँ, तो मैंने इसका ये थोड़ी पूछा कि होता क्या है सीएलआई, कोई मुझे बता दो, मुझे नहीं मालूम सीएलआई क्या होता है। एक नई सर्विस आई है, मैं लेना चाहता हूँ 50 रुपए पर मंथ में। सीएलआई, सी से क्या है, एल से क्या है, आई से क्या है? बताएं, पूरा पूरा बताएं। हाँ भाई, कौन बताएगा? कॉलर लैंडलाइन आइडेंटिफिकेशन। लैंडलाइन, लैंडलाइन। तो आपका जो मोबाइल फोन उस पर सीएलआई नहीं है? CLI है, लेकिन आपके मोबाइल पे नंबर, तो वो लैंडलाइन है क्या? नहीं। फिर भी उसको सीएलआई कहते हैं या नहीं कहते? हाँ कहते हैं। हालांकि वो लैंडलाइन LCD कहते हैं। LCD डिस्प्ले है? जो होता है हमारा। एलसीडी कहाँ से आ गई बीच में? एलसीडी का क्या ताल्लुक है इसमें? मुझे यही आपके मोबाइल पे सीएलआई है, जी। ठीक है, और आप कह रही है कि वो होता है कॉलर लैंडलाइन आइडेंटिफिकेशन। आपका मोबाइल आपका लैंडलाइन है, नो, तो फिर वो सीएलआई कैसे हुआ? वो आप बता दें। मैं बता दूं। बता, जवाब ये है कि वो है कॉलर कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन, नॉट लैंडलाइन। क्यों मोबाइल दे वही ना, ठीक है, करीब करीब है, दे दें जी। चलें, आज पाकिस्तान के वजीर आजम के ऐलान पर यौम सोग मनाया जा रहा है फलस्तीन के हालात पर। कल वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने फलस्तीनियों की इमदाद के लिए कितनी रकम का ऐलान किया था? क्यों मोबाइल का सवाल, कितनी रकम का ऐलान किया वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फलस्तीनियों की इमदाद के लिए? कोई टीवी नहीं देख रहा आजकल, कोई खबरें नहीं देख रहा, पता ही नहीं किसी को। इनको दे भाई, पता है भाई? 150 सब शान इफ्तार देख रहे हैं। 150 मिलियन। 150 रुपए, 150 मिलियन या 150 मिलियन रुपए डॉलर, डॉलर्स में अनाउंस किया, डॉलर्स में। डॉलर 150 डॉलर। कितने अनाउंस किए हैं? एक मिनट, दोबारा कान में बताए ना, नहीं बता दिया कान में। हाँ, तो आप खुद अगर जवाब दे दी तो क्या होता? इनको कान में क्यों बताया आपने? हैं? मैं चाहती हूँ भाई ले ले। आप चाहते हैं भाई ले लें, चले बताएं। 10 लाख डॉलर। 10 लाख डॉलर का ऐलान किया है। क्यों मोबाइल? बिल्कुल ठीक। मशहूर जमाना शेर, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। हाँ, शुक्र है ये शेर आता है। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। कॉटन रोब के कुर्ते का सवाल है। होता है सबो रोज तमाशा मेरे आगे। होता है शबो रोज तमाशा। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। क्या आपने टाइम बताया, जरा दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा चलें जी, आखिरी सवाल क्यों मोबाइल का यहां पे करके फिर हम जा रहे हैं ऊपर। अबुल बशर कहते हैं हजरत आदम को, बताइए अबुल अरब किसे कहते हैं? अबुल बशर कहा जाता है हजरत आदम को, अबुल अरब किसे कहते हैं? यार आपको मैंने कुकिंग के लिए बुलाया था, फिर मैं आपको बुला नहीं सका, इसलिए मैं चाहता हूं आपको कुछ जवाब का मौका मिले। कोई शेर सुना दें आप, चलें शेर सुना दें, क्यों मोबाइल ले लें, चलें। नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? क्या शेर खत्म भी हो गया? इतनी जल्दी क्या है? जल्दी तो मुझे सेगमेंट खत्म करना, आपको भी जल्दी है। हाँ शेर सुनाए। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? इस शेर के साथ जो आपने किया है, आपसे अल्लाह उसका हिसाब लेगा। मैं आपको क्यों, मतलब दिल नादा हुआ क्या, आखिर दर्द की दवा क्या है? भाई दिले नादा, बड़े दिले नादा तुझे हुआ क्या? आहिस्ता, मतलब कोई जल्दी नहीं है, आहिस्ता ऐसा। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या? बस यही शेर इस तरह भी होता था। क्यों मोबाइल दीजिए जी ने। चले जी भाई, जरा मैं कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दे दूं, फिर हम जाएं ऊपर, इसलिए कि वक्त कम रह गया है। ये जरा पीछे वाले भाई को दे, जरा पीछे जो भाई बैठे, जे डॉट का गिफ्ट हैम्पर इनके लिए है, ये है आपके लिए। मैं कुछ शेर ऊपर वालों से भी सुन लूँ ना पहले, ये आपके लिए है। पहले पीछे दूंगा, उन भाई को दें जो आपके पीछे खड़े, पीछे वाले भाई को दें। ये ABG जीन्स है आपके लिए, और ये है कुर्ती काला आपके लिए, और ये है स्पीड एस गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। अगर ऊपर वाले जाग रहे हैं तो जल्दी से ऊपर आ जाए। टाइम बहुत कम रह गया है, इसलिए जरा जल्दी से बता दीजिए। हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करने के लिए किस मैदान में लाए थे? क्यों मोबाइल का सवाल, किस मैदान में लाए थे बताएं? मिना। मिना के मैदान में लाए थे, बिल्कुल ठीक। क्यों मोबाइल? चले जी,
जमीन पर सबसे पहली मस्जिद किसने बनवाई थी? आपको पता है ना कल हजरत नूह की कश्ती का क्या जवाब आया है सेगमेंट में? अगर ऐसा कोई जवाब आया, हजरत नूह की कश्ती का नाम एक आदमी ने टाइटैनिक बताया इस सेगमेंट में। हम तलाश कर रहे हैं, पूरी शान रमजान की टीम से तलाश कर रही है उस आदमी को, वो बताकर गायब हो गया इस वक्त, हम ढूंढ रहे हैं उसे। जमीन पर पहली मस्जिद किसने बनवाई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। दीजिए की मोबाइल। डाक का टिकट सबसे पहले किस मुल्क ने जारी किया था, बताएं? बर्तानिया ने किया था। दीजिए जनाब की मोबाइल, दीजिए ना, बिल्कुल ठीक। मैं एक दो की मोबाइल वहां दे दूं इसलिए कि मैंने एक आखिरी बड़ा सवाल भी करना है। डिज्नीलैंड या डिज्नीलैंड पार्क का नाम सबने सुना है, डिज्नीलैंड वाकई कहां पर है बताइए? की मोबाइल का सवाल दीजिए, माइक दीजिए ना। जापान में नहीं भाई, अमेरिका। अमेरिका में वाकई है, बिल्कुल ठीक। की मोबाइल। तालियां तो बजाते रहे साथ में। एक बाइक का सवाल करना है मैंने, इसलिए आप लोगों की तालियां चाहिए मुझे। अमेरिका के पहले, छोड़े मुश्किल हो जाएगा, बता दीजिए और आसान। जंगी मकासद के लिए सबसे पहले किस मुल्क ने हवाई जहाज इस्तेमाल किया था, बताएं? माइक देना। बर्तानिया ने। गलत 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 गलत, बताएं? अमेरिका। अमेरिका भी नहीं, बताएं? जापान भी नहीं। चलें, ये अलमीरा का जोड़ा है आपके लिए, ये कॉटन रोब है आपके लिए, और ये एबीजी जीन्स है भाई मेरे आपके लिए, और ये कॉटन रोब जरा पीछे वाला भाई को दीजिए। ये हमारा है सवाल कि जंगी मकासद के लिए सबसे पहले किस मुल्क ने हवाई जहाज इस्तेमाल किया? वॉलंटियर्स माइक रखिए अपने हाथ में। ये हाई स्पीड की बाइक का सवाल है, बताएं कौन बताएगा? ऊपर से नीचे से हाई स्पीड की बाइक का सवाल बताएं, वो यहां से बताएगा कोई? जंगी मकासद के लिए सबसे पहले किस मुल्क ने हवाई जहाज इस्तेमाल किया? माइक देना है जल्दी। जर्मनी। आखिरी सवाल है हाई स्पीड की बाइक का। नहीं, जर्मनी नहीं। ऊपर से कौन बताएगा? अपने पीछे जो उनको माइक दें। हाँ जी बताएं। चाइना। चाइना ने नहीं, तो सारे मुल्क हो जाएंगे इस तरह। दो इनको ने माइक, जल्दी वक्त खत्म हो रहा है। अमेरिका। अमेरिका भी नहीं। क्या मैं बाइक खुद लेके घर जाऊंगा क्या? एक मिनट दे दो यार, बाइक तो देने किसी को। वसीम भाई। हाँ बताएं। जर्मन ने। जर्मन ने नहीं। बताएं, हाँ बताएं। जापान। रूस ने भी नहीं। अरे सारे ममालिक के नाम हो जाएंगे क्या? बताएं। हैं? नहीं, उनको तो माइक यार, ठहरो पीछे। हाई स्पीड की बाइक का सवाल है, बताएं। हैं? फ्रांस तो कोई मुल्क नहीं है भाई। ओफो, क्या करूं मैं? चलें ठीक है, ये शेर मुकम्मल कर लें, हाई स्पीड की बाइक दे दूंगा, वरना फिर खत्म सेगमेंट। ए दोस्त हमने तर्के मोहब्बत के बावजूद, सिर्फ शेर मुकम्मल करने पे हाई स्पीड की बाइक। ए दोस्त हमने तर्के मोहब्बत के बावजूद, बताइए। याद नहीं है तो ओफो, बताएं भाई। तुझे चाहा बहुत फिर से हंस के दिखाएं ना। ए दोस्त हमने तर्के मोहब्बत के बावजूद, चलें, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे। ये शेर मुकम्मल करेगा कोई? हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे। हाई स्पीड की बाइक का आखिरी चांस है, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं बस। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। हाई स्पीड की बाइक हो गई थी आपकी, वाह जबरदस्त, क्या बात है। तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर, हाई स्पीड की बाइक की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद शान रमजान की आज शान बढ़ाने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान की एक बहुत ही अजीम शख्सियत, एक बहुत अजीम हस्ती आज यहाँ पर शान रमजान के सेट पर मौजूद होंगी। कुछ ही लम्हों बाद हमारे साथ रहेगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं। जनाब, इस वक्त यहाँ पर हमारे शान रमजान के जो स्टूडियोज का माहौल है वो खासा गर्म है और खासी यहाँ पर हाइप है। वो क्यों है वो हम आपको बताते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस वतन अजीज में, माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बचाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गिरफ्तार के गाजी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किरदार के गाजी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इस वतन से मोहब्बत का दावा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास इस वतन से मोहब्बत का बाकायदा सबूत है, जो कि इस वतन के सपूत हैं। कुछ वो हैं जो यूरोप जाना अपनी तरक्की का पहला कदम समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं
जो यूरोप की आसाइशों को छोड़कर अपने वतन में वापस आना मुकद्दम समझते हैं। जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे जुनैद भाई, तो मुझे याद है उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसी डॉक्यूमेंट्री चलाई थी कि जिसमें दरख्त के नीचे बैठे हुए पाकिस्तानियों को उस तरह से शेव करते हुए दिखाया गया था, तमस्खुर उड़ाया गया था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी हालत ये हो, वो मुल्क कैसे एटमी ताकत बन सकता है। लेकिन शायद लोगों को नहीं मालूम था, पूरी दुनिया उस वक्त सकते में आ गई जब ये सोच रही थी दुनिया कि ये मुल्क एक सुई नहीं बना सकता, ये मुल्क कैसे एटम बम बना सकता है। लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि अल्लाह ताला ने, अला कुल्ले शैइन कदीर ने हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर दिया है, जो कि अपनी तदबीर से वतन की तकदीर बदल सकता है। शान रमजान के आज के सेट की रौनक बढ़ा रहे हैं मोहसिन पाकिस्तान, पाकिस्तान का फख्र डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा अपनी तालियों में। Bless you, sir. Bless you, bless you, bless you. आइए सर, आइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बादाम भाई खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से? बिल्कुल बिल्कुल। आपका जॉब तो पता है ना, एक दिन उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि मैं बादामी बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं खुबानी बोल रहा हूँ। उसके बाद से मैं डॉक्टर साहब को जब भी फोन करता हूँ, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कह रहा है जी मुझे पता है आप बादामी बात कर रहे हैं, मैं खुबानी बात कर रहा हूँ। कैसे मिजाज है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। और आपको पता है जुनैद भाई का, जब जुनैद भाई हमारे पास आए थे ना, इनके वालिद एयर कमोडोर होते थे, हमारे कहूटे की डिफेंस कमांड जो थी उसकी इंचार्ज थे, उसकी हिफाजत करते थे। तो बस ये समझ लें कि जितनी बड़ी इनकी दाढ़ी है ना, ये उस वक्त ऐसे 5-6 गुना बड़े थे बस। अच्छा। सर मेरे वालिद साहब को मैंने आज बताया आप आ रहे हैं, तो वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, वो बड़ा इस बात पर बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे कि जो कुछ आपने इस असासा इस वतन को दिया है, वो उसको उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उन पर है। तो वो मुझे उन्होंने कहा था कि बहुत सलाम कह दीजिएगा मेरा डॉक्टर साहब को। वालेकुम सलाम। जी मैं कर्ज कर दूँगा आपको। कैसे गुजर रहे हैं अय्याम ज़िंदगी, कैसे गुजर रहे हैं डॉक्टर साहब? रमज़ान मुबारक कैसा गुजर रहा है? बल्कि देखें रमज़ान तो हम ये बात कर रहे थे, लग रहा था कल शुरू हुआ है और आज शब 27 आज जुम्मतुल विदा हुई, अब रह गया ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे रह गए। इसके बाद आखिरी जुम्मा भी, आखिरी 2-3 दिन और ख़त्म। डॉक्टर साहब पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी ईद की आपकी जितने भी जोड़े हैं वो मेरी जिम्मेदारी, प्लीज़। घर का पता तो है ना? घर का पता भी है। घर का पता मुझे है, मैं आ भी चुका हूँ, मैं ले आऊँगा। घर का पता है ना? मुझे घर का पता है। लाल किले से जरा अंदर जाके मुझे मालूम है डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह वो हो गया डॉक्टर साहब। सुबह इंशाल्लाह जबरदस्त जी। तो डॉक्टर साहब लेडीज और जेंट्स दोनों, लेडीज और जेंट्स दोनों। अच्छा, लेडीज के बगैर जेंट्स के कैसे जा सकते हैं? पैकेज कंप्लीट पैकेज भाई भाई बिल्कुल। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के तो मोहसिन इंसानियत हैं, लेकिन शादीशुदा भी तो हैं। और बेटियां भी हो, नवासियां हैं। अल्लाह उन नसीब अच्छा करे, जिंदगी में बरकत दे। वैसे ये मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है डॉक्टर साहब से, वो आदमी जिसने एटम बम बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, वो अपनी बेगम के सामने कैसा होता है? घर में क्या होता है? वो कैसे? भीगी बिल्ली। अच्छा, ये स्टोरी हर जगह एक ही है डॉक्टर साहब? यार अब आज के बाद कोई किसी को ब्लेम ना करे। मैं आपको एटम बम का खालिक कह रहा है भाई, ये बात हमारी क्या बात है? मैं आपको किससे बताऊं, मैंने कुछ कालम लिखे थे अखलाकियात पे, तो एक अमेरिकन ने वहाँ से मुझे, अमेरिकन प्रोफेसर ने लिखा दिया कि आप तो औरतों के ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं पाकिस्तान में, और उनको यूँ दबा के रखते हैं, ये रखते हैं। मैंने कहा तुम आओ, हम एक पाकिस्तानी लड़की से तुम्हारी शादी करा देते हैं, और 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद तुम्हें पता लगेगा कि तुम बात हो या वो बात हो।
तुम्हें टिक्की का नाच नचा देगी। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल, ये आपकी उर्दू इतनी साफ कैसे है? आप तो पंजाब से नहीं, आपका कोई ताल्लुक? बड़ी साफ उर्दू बोल रहे हैं। अच्छा अल्लाह से माफ करो, अच्छा। मैं भोपाल के रहने वाला हूँ। अच्छा असल में मैं ये बात जानता हूँ, मैं चाहता था बाकियों को अहले जुबान में से हम लोग। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है, वाह वाह वाह। और कराची में रहा हूँ, कराची की बाशिंदा हूँ। अच्छा वाह। पार्टीशन के बाद कराची में आया। कराची कहाँ रहे डॉक्टर साहब? सब पहले मकरानियों में। अच्छा अभी तक याद है। अच्छा इतने प्यारे इतने हंसमुख लोग थे, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें। फिर हम जुबली सिनेमा के पास रहे। अच्छा जुबली सिनेमा के पास, वहाँ पर कॉलेज जब जाते थे डीजे कॉलेज, फिर नाज़िमाबाद में रहे। अच्छा नाज़िमाबाद कहाँ डॉक्टर साहब? नाज़िमाबाद बड़े मैदान के पास। अच्छा बड़े। और फिर वहाँ से हम सीधे यूरोप चले गए। अच्छा डॉक्टर साहब मैं और वसीम ये सवाल करना चाह रहे थे कि ये यूरोप से, वसीम ने बताया कि दुनिया तो यहाँ से यूरोप जाती है और अपनी कामयाबी समझती है, इस एक इंसान ने अपनी कामयाबी वहाँ से यहाँ आने में समझी। मुल्क से मोहब्बत थी ना। देखिए हमारा वेल कंसिडर्ड डिसीजन था। जो लोग यहाँ रह रहे थे उनको तो बना बनाया पाकिस्तान मिल गया। जो लोग छोड़ के आए थे ना, वो बहुत सोच समझ कर आए थे, इसको अपना वतन समझ के। तो हम सब छोड़ छाड़ कर आए थे और हमें इसकी हिफाजत बड़ी अजीज़ थी। जब हमने देखा कि ख़तरात में है तो फिर बाहर की दौलत इशरत क्या चीज़ है? यहाँ भूखे तो नहीं मरे। वाह। ऊंच नीच होती रहती है ज़िंदगी में, तो अल्लाह ताला की तरफ से दी होती है। लेकिन अल्लाह का करम है, सर छुपाने की जगह 2 वक्त नहीं 3 वक्त का खाना मिल जाता है, दोस्त अहबाब हैं, चाय भी मिल जाती है, महफिलें भी मिल जाती हैं। जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नहीं, मेरी तो सुई अभी तक वहीं अटकी हुई, पहले जब बात हो रही थी ना वहाँ पे। तो ज़रा ये आप तो बताएं ना, ये चूँकि अब्दुल कदीर खान साहब का ये रूप तो सबने देखा ही है, आपने टॉक शोज़ में भी आते हैं मुख्तलिफ। ये वो शरीक हयात का इंतखाब आपने कब किया था, कैसे किया था? अरे सर जवानी में आपको पता है उस आदमी कैसा होता है। तो ऐसा लग रहा है आप कह रहे हैं कि जवानी में हो जाती है गलतियाँ, क्या करें? इस उम्र में तो बड़ा सोच समझ के करता है। उस जमाने में तो बस तो वो जो होता है ना, पहली नज़र में है मोहब्बत। अच्छा ऐसे ही हुआ था आपके साथ भी? बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। फिर इजहार भी फ़ौरन कर दिया था या क्या किया था? इजहार 5-6 महीने के बाद। 5-6 महीने बाद। और इजहार का फिर सामने से क्या जवाब आया था? हमसे कोई इनकार करता? आप हमारे जवानी के फोटो। कॉन्फिडेंस है भैया डॉक्टर साहब। इस जुमले पर मैं कहूँगा पाकिस्तानी तुझे सलाम। वाह। आप जरा हमारे जवानी के फोटो देखिए, 6 फुट का आदमी। और कॉन्फिडेंस भाई, कॉन्फिडेंस। अब भाभी हमारी लोगों को बताना कि कहाँ से हैं, क्या है? हॉलैंड की हैं। हॉलैंड की हैं, हॉलैंड की रहने वाली हैं। और जो लोग जानते हैं उनसे पूछ लीजिए, सब कहते हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क से इतनी मोहब्बत करती हैं। बेशक। कभी उन्होंने आज तक जाने का नहीं सोचा, कभी ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ तकलीफ है मैं वापस जाना चाहती हूँ, कभी नहीं। हमेशा आपने मुझे डॉक्टर साहब अपनी बेटी की किताब दी थी, वो मैंने पढ़ी थी थोड़ी सी। जी सर। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब थी, बल्कि मेरा बड़ा दिल था कि उनसे बात की जाए। एक आप इस्लामाबाद आए जो बैठा है ना, आया शी इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। आजकल आई हुई है, दुबई होती है, दुबई होती है। अच्छा दुबई अभी आजकल आई हुई है और वो कोई 15 अगस्त तक रहेगी इस्लामाबाद में। अच्छा ठीक। ये ज़बान की बात हुई तो घर में फिर कौन सी ज़बान खास तौर पर भाभी से क्या मतलब वो उर्दू में कन्वीनियंट है नहीं है, क्या है, किस तरह? देखिए बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। कौन सी? बहुत सारी। सबसे भारी तो मोहब्बत की ज़ुबान होती है। ठीक है। अच्छा उसके बाद हम उर्दू भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं। वो समझ लेती है उर्दू? बिल्कुल। और बोल लेती है रवानी से? बिल्कुल। और डच भी बोल लेते हैं। माशाअल्लाह। और जर्मन भी बोल लेते हैं। डच भी बोल लेते हैं डॉक्टर साहब? आप भी? फ्लुएंटली। अजीब। वाह वाह वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। और जर्मन भी बोलते हैं फ्लुएंटली। अच्छा जर्मन लैंग्वेज भी बोल लेते हैं? अल्लाह की शान। वाह वाह। और फ्रेंच सब समझ लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, सब समझ लेते हैं, लिटरेचर वगैरह। नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले जनाब, तो आज हमारी शान रमज़ान की शान बढ़ाने के लिए हमारे शान रमज़ान के सेट पर मौजूद हैं। और आज की इस ऑडियंस से मैं कहूँगा ये आज की ऑडियंस सबसे ज़्यादा लकी ऑडियंस है हमारी, कि डॉक्टर AQ खान साहब यहाँ पर आज हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। और इंशाल्लाह अभी कुछ वक्त है मौजूद, ज़रा इनसे हम कुछ गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे इसी हल्के फुल्के अंदाज में। खुद डॉक्टर AQ खान साहब एक फलाही काम भी कर रहे हैं, डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट भी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे, कुछ डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब।
अज़ीज़ान गिरामी, हम डॉक्टर AQ खान साहब को एज़ एक दुनिया के टॉप साइंटिस्ट के नाम से जानते हैं। हम इनको मोहतरम पाकिस्तान की हैसियत से जानते हैं कि आपने इस मुल्क को अल्लाह के फजल से एटमी ताकत से रूशनास करा के नाकाबिल तस्खीर बनाया। ये भी अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर। एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और ये एक हॉस्पिटल है जो कि मीनारे पाकिस्तान लाहौर के बिल्कुल साथ बन रहा है। इसी सिलसिले में एक हमने डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है। आइए आपको ये डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं। मेरे अजीज पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, पाकिस्तान में गरीब मरीजों को इलाज के लिए बहुत कम सहूलियात हैं। हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल लाहौर में तामीर कर रहे हैं। इसकी तामीर के लिए आप अपनी ज़कात और अतियात डॉक्टर AQ खान अस्पताल को भेजिए ताकि हम गरीब लोगों का इलाज कर सकें। ये डॉक्टर साहब, ये ख्याल ये कैसे आया, कब आया कि जनाब इस हवाले से भी कुछ किया जाए? देखिए, जब पाकिस्तान आए, बाहर गए, पाकिस्तान को मुश्किलात में देखा, मुल्क को मुश्किलात में देखा, तो मुल्क की खिदमत करने के लिए वापस आ गए। वो जब खिदमत पूरी कर दी, मुल्क को एक नाकाबिल तस्खीर दिफा मुहैया कर दिया, तो अब देखा कि आवाम की सेहत जो है उसको बड़ी सख्त ज़रूरत है कि उसके लिए कुछ काम किया जाए। तो अब कौम की खिदमत कर रहे हैं। पहले मुल्क की खिदमत की थी, अब कौम की खिदमत करने के लिए ये काम शुरू किया है कि एक अभी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उससे छोटा प्रोग्राम हमारा चल रहा है। इस्लामाबाद में हमने एक NGO बनाई है जिसके 7 क्लिनिक चल रहे हैं। अच्छा जी हाँ, और उसके 7 क्लिनिक चल रहे हैं और हम हज़ारों लोगों को हर महीने मुफ्त दवा और इलाज करते हैं। अच्छा। इसी तरह कराची के अंदर एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल हमने कायम किया हुआ है जिसमें हज़ारों लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं। ठीक। उसके इंचार्ज हमारे सेनेटर हसीब खान हैं, वो उसको चलाते हैं। तमाम दोस्तों से, अहबाब से, हमारे बिजनेस कम्युनिटी है फ़राग दिली से, वो उसमें मदद करते हैं और हम उसके ज़रिए लातादाद लोगों को ये मुफ्त इलाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने व्यूअर्स से भी कहेंगे ये डॉक्टर साहब के जितने भी हॉस्पिटल और जितने भी काम चल रहे हैं, फलाही काम, ऐसे तो खैर उस पर टेलीविजन की जी हाँ, स्क्रीन पे आ भी रहा है। जी हाँ, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इसकी तमाम तर रेलेवेंट डिटेल्स वगैरह भी आ रही हैं। और जाहिर है जहाँ पर एक अंदाज़ मोहसिन पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने का ये भी है, और बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ क्या होगा कि वो अपने अंदाज से जो कौम की खिदमत कर रहे हैं उसमें इनके हाथ मजबूत किए जाएँ और इनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दिया जाए। मुझे यकीन है कि इस हवाले से भी आज की ये शान रमज़ान नशरियात खासी कंस्ट्रक्टिव साबित होगी कि लोग इस हवाले से जिनकी जो भी अकाउंट डिटेल्स वगैरह हैं उस पर कांटेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज़ अपनाएंगे डॉक्टर साहब के हाथ मजबूत करने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आप मैनेज किस तरह कर पाते हैं? ज़ाहिर है अभी तो सिक्योरिटी इशूज़, मूवमेंट से इशूज़, मूवमेंट के मुतालिक इशूज़, इस तरह के लाइफस्टाइल में आप मैनेज कैसे कर लेते हैं ये सोशल वर्क और ये सारी चीज़ें? आदमी करना चाहे सब कुछ कर लेता है। सही है। हाँ। अगर जज्बा हो और शौक़ हो तो आप कर लेते हैं। सही बात है। अगर हम जब आए थे तो पाकिस्तान में सिवाय मेरे ख्याल से भुट्टो साहब के और गुलाम शाह साहब और आगा शाही साहब के, तो इनका किसी को यकीन नहीं था कि हम एटम बम बना सकते हैं। जब मैंने उनसे कहा तो सिर्फ ये 3 आदमी थे, 4 आदमी जिन्हें यकीन था कि ये सब जो यंग लड़का है ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है। कौन कौन लोग थे डॉक्टर साहब? भुट्टो साहब, गुलाम शाह साहब, AGM काजी साहब और आगे शाही साहब, 4 लोग बस। और पूरा मुल्क में कोई भी ऐसा नहीं था जो ये कहता कि यकीन करता कि जी ये काम हम कर सकते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाब एक हकीकत बना, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने माशाल्लाह 6-7 साल के अंदर इस मुल्क में जहाँ आज भी 67 ईयर्स के बाद भी सुई नहीं बनती, अल्लाह की शान, जहाँ कि आप देखें मोटरसाइकिलें भी इंपोर्ट होती हैं, जहाँ प्लास्टिक के खिलौने इंपोर्ट होते हैं, जहाँ सॉफ्ट टाई इंपोर्ट होते हैं, जहाँ चीज़ इंपोर्ट होती है, वहाँ 6-7 साल में इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत बना देना और मिसाइल पावर बना देना। आप इसी वजह से जंग से बचे हुए हैं कि हिंदुस्तान को पता है कि अगर उसने कोई शरारत की तो उसका कोई बड़ा शहर नहीं बचेगा 5-10 मिनट के अंदर। और आपको
बादामी भाई पता है कि उसकी हिफाजत बड़ी सख्त की गई थी कहूटा प्लांट की। उस पर हमारे पास बहुत सारी फौज लगी हुई थी और उसके अंदर एयर डिफेंस कमांड भी थी जो कि छोटी मिसाइलें लगा करते थे। लेकिन वहाँ एयरफोर्स की भी एक यूनिट थी जो कि हवाई जहाज़ों को उस ज़माने में मिराज जहाज़ 24 आवर उड़ते रहते थे हिफाजत के लिए। और उसके कमांडर कौन थे? जुन्नैद भाई के वालिद। वाह, तो ये बात इन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ इससे पहले बताई टेलीफोन में, तो मैं बड़ा मैं कुछ उन खुशकिस्मत पाकिस्तानियों में से हूँ जिसने कहूटा देखा है। वालिद साहब के साथ जाया करते थे बड़ी हैवी सिक्योरिटी के अंदर, और मेरी एक दफ़ा डॉक्टर साहब से मुलाकात भी हुई थी। अच्छा। और मैं इतना मुझे याद है कि मैं इतना वो कहते हैं ना कि इतना मैं वो स्ट्राइक किया मुझे कि मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से मिल रहा हूँ कि मैं अपने होश हवास ही उड़ गए मेरे। जब मुझे याद है डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, मुसाफा हुआ था, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली थी उससे। जब मिले तो पता लगा ये शख्स बाहर से तो रोब शेर का है, लेकिन जब मिले तो बिल्ली की तरह नरम है। नहीं डॉक्टर साहब, वाकई माशाल्लाह से आपसे बात करके बड़ी खुशी होती है। आप एक बहुत बड़े आदमी हैं और आप जिस मोहब्बत से मिलते हैं तो सामने वाला जो है वो एकदम ईजी हो जाता है कि भाई ये हमारे बड़े हैं और हमारे साथ इतनी प्यार से मिलते हैं, तो फिर आपसे बात भी हो सकती है। जी सही बात है, ये ठीक बात है। बहुत बहुत हम्बल, बहुत हम्बल, अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे डॉक्टर साहब ज़रा ये भी तो हमारे लोगों को पता चले ना कि क्या मशागिल हैं, क्या तरजीहात, क्या पसंद नापसंद। आजकल तो तरजीहात यही है कि अस्पताल बनाएं, ठीक है, और इस वक्त सबसे बड़ी तरजीहात और मुल्क के हालात देख के कोड़े थोड़ा दिल जलाते रहे कि जिस मुल्क के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं, कुदरती वसाइल, तो उसका ये हशर कर दिया है। आप देखिए अभी इलेक्शन से पहले कितने दावे किए जाते थे कि 6 महीने में वो साल भर में बिजली का मामला ख़त्म हो जाएगा, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, टीवी पर वो बयानात मौजूद हैं। अब कहा जाता है कि जो 5 साल में नहीं होगा 10 साल में भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। अभी ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं, वो कहते हैं कि जी माफ़ी दो, तो आवाम तो ये कहते हैं कि माफ़ी नहीं फांसी लो, क्योंकि जब तुम इस काबिल नहीं थे तुम एक अकाउंटेंट हो, तुम इस काबिल नहीं थे कि तुम बिजली बना सको या तुम्हें समझ बूझ हो, तो तुमने यह होता कबूल क्यों किया? सही बात। अगर आप में थोड़ा सी गैरत होती तो आप कहते कि भाई ये काम किसी इंजीनियर को दो, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इस फील्ड का माहिर हो, एनर्जी का माहिर हो, ताकि वो सही इक़दाम करे। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान एक बहुत ही एक एतबार से डिसाइसिव मोड़ की तरफ अल्लाह करे चीज़ें जाएँ। मेरा इशारा ऑपरेशन की जाने में, ऑपरेशन ज़रब अज़ब की जाने में। जी जी, उस पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप कौम से कहेंगे? ज़ाहिर है इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है जो कि हो रही है, ऑपरेशन ज़रब अज़ब। ये इंशाल्लाह क्या एक मामला बेहतरी की जानिब जाएगा? क्या ओपिनियन है आपका? देखिए उस वक्त ये था कि पूरी हुकूमत ने, सब लोगों ने कोशिश की, आर्मी ने भी, कि मामला अफ़ाम व तफ़हीम से ख़त्म हो जाए। सही। लेकिन धमाके होते रहे, सिपाहियों को मारते रहे, फ़ौजियों को मारते रहे, लातादाद शहीद हो गए हमारे फ़ौजी वगैरह, तो फिर कोई चारा नहीं था। अच्छा ये कि हमारे लोगों के भेष में गैर मुल्की आए हुए हैं जी, वो बीच में से कर देते थे और फिर ये लगता था कि हमारे लोग कर रहे हैं, वो इनमें घुसे हुए थे, इनमें मिले हुए थे और उनको तफरीक करना मुश्किल था। तो एक ही तरीक़ाकार रह गया था कि वो इलाका जहाँ से ये लोग ऑपरेट करते थे तो उसको ख़त्म किया जाए ताकि ये अमन अमान कायम हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके अलावा मतलब और कोई चारा नहीं था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब भी ये समझते हैं। जी जी जी, ठीक ठीक। और इंशाल्लाह अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को हमने जहमत दी है, अभी यहाँ पर कुछ वक्त गुजारेंगे हमारे साथ, शान रमज़ान की रौनकों का, इससे शान रमज़ान की सेट में और हमारी रौनकों में इंशाल्लाह इजाफा करते रहेंगे। एक वक्फे के बाद हम इस नशरियात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब।